स्नेहा सॉरी है मारे मोडું થઈ ગયું છે सर बोलो मुझे देना पड़ता है अकाउंट का पेज मैंने एक ही लेक्चर हो रहा है એક હા એક લેક્ચર જો તમે થાય તો આપજો ના થાય તો ચાલશે બરોબર છે તમે એબસન્ટ હતા એવું નહોતું ને તમે લેટ જોઈન થયા એવું છે ને હા છેલ્લું લેક્ચર જ અટેન્ડ કર્યું ઓકે એટલે આ તો એવું ના થાય કે જે સ્ટુડન્ટ શું છે કે એબસન્ટ હોય એ લોકો બી પછી એવું કહે કે સર અમારો લેક્ચર તો બાકી હતો એટલા માટે મેં તમને પૂછ્યું ખ્યાલ આવ્યો ને તમને આ બધા લેક્ચર્સનું બેકઅપ તો મળી જ જાય છે ને પેલા રેકોર્ડેડ સેશન્સમાં એ તમે એબસન્ટ હતો બરોબર છે એટલે લેટ જોઈન થયા તો બરોબર છે હા ચિંતા નથી ऐसा था એ હા ભાઈ મારે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કરવાની બધા જોડે સાઉથ યાર બોલો ને રિક્વેસ્ટ તમે પહેલા કરી દો દેવેન્દ્ર સર ના કન્ટિન્યુઅસલી બે લેક્ચર ના રાખતા જાઓ સર ઓવરડોઝ થઈ જાય છે બહુ જ પછી એવું થાય છે એવું ફીલ થાય કે બીમાર બીમાર હોય અરે બાપરે એવું મને એકને નહીં ઘણા બધાને એવું અરે ના તમને એકલીને થતું હોય તો બી ચિંતા ના કરો તમે હું એવું બિલકુલ જ હા નીંદ સે હે કન્ટિન્યુઅસલી હા પણ આજે 3 દિવસ કન્ટિન્યુઅસલી થઈ જાય છે 3 દિવસ કન્ટિન્યુ 2 કલાક અકાઉન્ટ બે દિવસ ઓલરેડી ભણી આજે 3-3.5 કલાક હા સર એટલે વચ્ચે બ્રેક હોય કે ના હોય સર એ આપે 5 મિનિટનું કાલે બી કીધું 10 મિનિટનું બ્રેક 5 મિનિટમાં તો પતી ગયું બ્રેક 15 મિનિટનું હોવું જોઈએ એની જગ્યા ના એટલે એક્ચ્યુઅલી કેવું થયું કે કાલે સર એક્સટેન્ડ કરી લીધું અને પછી લેટ એમને એટલે જે ફર્સ્ટ બ્રેક હોય એને લેક્ચરમાં લઈ લીધું અને પછી બ્રેક આપ્યો ત્યાં સુધી દેવેન્દ્ર સરનો લેક્ચર સ્ટાર્ટ થઈ જાય ને એટલે પછી એમને બ્રેક ના આપ્યું ઓ હા તો બહુ નાઇન્સાફી કહેવાય તમે લોકો જાણે તમે લોકો આટલા બધા નાના નાના બાળકો છો અને આ લોકો પતી જાય સર બે તો આ પછી એકદમ સાચી વાત છે તમારી હું ગઈકાલના તમારા બ્રેક નું કોમ્પન્સેશન કરવા માટે જ આજે લેટ આવ્યો સાચે તમારો પેલો બ્રેક ગઈકાલ નતો પડ્યો ને મને ક્રેડિટ લેવાનો ક્યાં સવાલ ક્રેડિટ લેવાનો એટલે તમે એવું કહો છો કે હું કોઈ કામનો જ નથી ને હું અહીંયા બેઠો છું એવું કહો છો તમે આ અમે વિશ્વાસ સાવ જ આવું કહી દીધું મને બધા એવું પાછળથી બોલતા હોય મારા માટે પણ તમે આગળ જ કહી દીધું મને આ સાચી વાત તમારી આપણે તમે જે કોઈ બધા સજેશન આપણે કરી જ નાખવા છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ તમે ચિંતા ના કરો તમે લોકો પેલું ડાયરેક્ટ ટેક્સનું કીધું હતું એમાં દિલાવર સરે સ્પીડ ઓછી કરી નાખી છે ને અને રિપીટ કરે છે ને બેટર હતો ને હા એટલે તમને વાત કરી હતી કે ભાઈ આવું છે એટલે તમે બીજો કોઈ બી ઇશ્યુ હોય તો તમે કહેજો અને આપણે મારી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત આજે કરવાની છે હા આજે આ પૂનમ હની અને હની હની કેમ નથી આવી હની કેમ નથી આવી કાલે બી નથી આવી मुझे तो पता है ऑनलाइन अटेंड करवाना है मतलब कि देखो कंसेप्ट आज भी ऑनलाइन की नहीं है યશસ્વી તમે આવી ગયા સારું કર્યું બાકી તમે વચ્ચે એબસન્ટ રહેતા હતા ને એક જ દિવસ હા હું કહું છું મીટિંગ ચાલુ કરીને કહું ને બેટા થેન્ક યુ સ્નેહા ચલો let us start dear students sneha I hope I am audible to you beta
Please give a confirmation once before we start. Yes, sir. Sneha, स्नेहा, ओके चलो। भाई देखो, अभी सबसे पहले मेरे को आप सबसे क्या कहना है वो आपको मैं बताता हूँ कि अपना एफएम का तो पढ़ाई करने का ही है, दैट इज अनडाउटेडली। हाउएवर हमको सबसे इम्पोर्टेंटली ये डिस्कस करना है दैट से हाउ वी विल प्लान आवर स्टडीज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है ना, जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, पढ़ाई हम लोग करवा रहे हैं आपको, वो सब तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट से व्हाट एवर द सजेशंस दैट से यू हैव, हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इन दैट से वन ऑफ द कॉन्वर्सेशन वाज अबाउट दिलावर सर, वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। स्टिल इफ एट ऑल देयर इज एनी सजेशन फ्रॉम योर एंड, यू कैन डेफिनेटली टॉक आइदर टू जय सर और टू मी दैट सर ये इशू कुछ है, तो हम लोग वो इशू को भी एड्रेस करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है ना। अभी देवेंद्र सर के लेक्चर्स में आपको ब्रेक 15 मिनट का मिलेगा तो वो चलेगा, ऐसा पूछा मैं। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 3.5 आवर्स लेक्चर, तो 15 मिनट्स का ब्रेक होगा तो चलेगा आप लोगों को? इज दैट ओके? चलो ठीक है, तो आई विल मेक श्योर दैट से मैं सर को बोल दूंगा कि सर आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स का ब्रेक तो देना ही देना है, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम लोग ऐसा ट्राई करेंगे दैट्स एज फार एज द थियरी सब्जेक्ट्स आर कंसर्न, तो उसके बहुत लॉन्ग सेशंस नहीं हो, पर प्रैक्टिकल के थोड़े लॉन्ग सेशंस हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर दैट द कोर्स इज ऑल्सो गेटिंग कंप्लीटेड इन ड्यू टाइम। ठीक है ना। तो अ, ये दो चीज है, उसके अलावा और कुछ कहना है आप लोगों को? एक सर देवेंद्र सर का आज तीसरा दिन है और दोनों टाइम उनका हाँ हाँ मैं समझ, मतलब 2 लेक्चर साथ में, 2 लेक्चर साथ में, 2 लेक्चर साथ। सर अल्टरनेट डेज हो तो भी चले। अब 3 दिन से हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही पढ़ रहे हैं। आप समझ रहे हो? फिर एक साथ वो સમજી ગયો એટલે એક દિવસ મૂકીને પણ મને તો પણ ચાલે। સાચી વાત છે તમારી. એટલે we'll try to incorporate it, we'll try to incorporate that's the breaks के साथ, और at the same time so the alternative days को lectures हो, that is also will make an effort. Okay sure. चलो, और कुछ ये दोनों के अलावा किसी को और कुछ कहना है, पूछना है, बातचीत करनी? ओके चलो। तो देखो, द फर्स्ट थिंग विच आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू इज दिस दैट सी, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट लाइक यू एंड आई एम अटेंडिंग द क्लासेस। तो आज थर्सडे है तो थर्सडे को मैं लेक्चर्स अटेंड करके घर पे गया। देन व्हाट काइंड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई हैव वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। दैट इज थर्सडे इवनिंग और फ्राइडे मॉर्निंग को व्हाट काइंड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई हैव। मेक श्योर दैट यू आर डूइंग एटलीस्ट दिस मच, कुछ ज्यादा हो तो अच्छा है, अदरवाइज उससे कम नहीं होना चाहिए। देखो, फर्स्ट थिंग इज दैट से वी हैव टू मेक श्योर दैट नेक्स्ट डे जो लेक्चर होने वाला है, लेट अस से दैट से द फ्राइडे जो लेक्चर होने वाला है, सपोज की लेट अस से दैट से आपको फ्राइडे को लेक्चर होने वाला है अकाउंट्स का, जिसका लेक्चर आज से 4 दिन पहले हुआ है, या तो उसका लेक्चर आपका लास्ट वीक हुआ है। जैसे संकेत सर का लेक्चर शायद आपका नहीं आया है बहुत टाइम से, तो संकेत सर का नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूएशन वाला टॉपिक है। तो व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू दैट से द लास्ट लेक्चर का हमेशा थोड़ा रिवीजन करके नेक्स्ट लेक्चर में आने का। सी, हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए ऐसा होता है लेट्स से वी आर टीचिंग दिस फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड एंड वी आर टीचिंग इट एट नंबर ऑफ प्लेसेस। हम लोग ये क्या सब्जेक्ट पढ़ाते रहते हैं, तो हमको क्या होता है, कोई भी चीज ऐसा नहीं होता कि हमारे लिए वो डिफिकल्ट है या तो हमारे लिए वो ऐसा है कि हम लोग वो नहीं कर पाएंगे। However, when we come over here, we always have a point कि जो लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था वो तो आप लोगों को आता ही है, उसका इफ पॉसिबल हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं, अदरवाइज हमारा क्या होता है कि हम लोग आगे चलते जाते हैं। So as a student, you have to make sure that say you are coming with the revision of the class that was conducted last year. वो हो सके तो हमेशा करके आइएगा। सेकेंडली, जरूरत है उसके लिए तो आप वीडियो लेक्चर ऑन कीजिए, अगर जरूरत नहीं है तो वीडियो लेक्चर्स के बगैर जो भी बुक है सिर्फ उसके ऊपर से ही आपको रिवीजन करना है। मे बी फॉर एग्जाम्पल रेशियो एनालिसिस चल रहा है तो सारे रेशियोज आपने देख लिए,
या तो लास्ट टाइम मैंने एक दो नए रेशियो करवाए तो वो रेशियोज देख लिए, इंटर रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कर लिया। ऐसा करके आपको क्या करना है, यू हैव टू रिवाइज प्रीवियस डे क्लास। सेकंड, जैसे कि अभी चल रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बैक टू बैक लेक्चर्स आ रहा है, तो बैक टू बैक लेक्चर्स आ रहा है तो उसपे तो क्या होता है, फ्रेश ही होता है, तो उस पर इतना रिवीजन करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। सेकेंडली क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपको है ना होमवर्क हमेशा करना है, whatever the homework which is provided to you, so that you are required to do on a regular basis. Make sure that सभी हमारा होमवर्क रह जाएगा नहीं। See, whether it is like PSP Educate India or it is any other classes, या तो कोई भी अच्छी फैकल्टी है ऑल इंडिया लेवल पे बहुत पढ़ाती है, उन सबके मटेरियल का या तो उन सबके कहने से आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना कॉन्फिडेंस आपको अपने हिसाब से आंसर्स करने से आएगा। One thing you have to remember always, let's say as a student, whenever you feel low, then in that case you will be having certain checkpoints. checkpoints में आप क्या देखोगे, आप checkpoints में ऐसा देखोगे कि एक, क्या मेरा मॉड्यूल हो चुका है। चेक पॉइंट नंबर 2, क्या मेरे पास एग्जामिनेशन पेपर्स हो चुके हैं। चेक पॉइंट नंबर 3, क्या मैंने रिविजनरी टेस्ट पेपर किया है। चेक पॉइंट नंबर 4, क्या मैंने थियोरी का राइटिंग प्रैक्टिस किया है। क्या मैंने मेरे हिसाब से कोई समरी नोट्स बनाया है। दीज आर योर चेक पॉइंट्स। ये सब आपको जब आप देखोगे ना कि हाँ भाई ये मैंने किया हुआ है, देन इन दैट केस आपके रिवीजन के ऊपर या तो आपको सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है। इसी कितनी बार रिवीजन करना, दैट इज व्हाट्स अ काइंड ऑफ द क्वेश्चन दैट्स द स्टूडेंट्स हैव फ्रीक्वेंटली, दैट्स द स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं। तो भी मेरा सजेशन ऐसा है दैट से यू शुड बी हैविंग रिवीजन एटलीस्ट फॉर 2 टाइम्स। 2 टाइम रिवीजन होगा ना, ओनली इन दैट केस यू विल गेन कॉन्फिडेंस इन एग्जामिनेशन। देखो आप लोग सितंबर 26 में एग्जामिनेशन दो, या तो आप लेट अस से सॉरी जनवरी 27 में दो, या तो आप मई 27 में दो, टाइम का कुछ लेना देना नहीं होता है। अल्टीमेटली जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाओगे ना, एट दैट टाइम आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लो फील होने ही वाला है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने ही वाला है दैट से आई एम अंडर प्रिपेयर्ड। विद दैट अंडर प्रिपरेशन हाउ फार यू आर एबल टू परफॉर्म इन एग्जामिनेशन, वो आपको टेस्ट रेगुलर बेसिस पे करना ही करना है। You don't have to skip any examination which is conducted over here. I will make sure that से आपके every week में examination conduct होगा ही होगा, that I will make sure. अगर मेरे से रह जाए then in that case you have to definitely point me कि सर जो आप एक बार तो मैं examination नहीं होगी। अभी ऐसा नहीं होगा कि examination conduct हम लोग नहीं कर पाएंगे। So we will make sure that examination conduct हो जाएगा on a very regular basis. So you have to see that say homework. Third thing is that say prepare for the examination. जो भी आपका ये वीक में है एग्जामिनेशन, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। ये 3 चीज तो आपका होना ही होना चाहिए। अच्छा, एग्जामिनेशन के पहले, दैट इज फॉर एनी चैप्टर व्हेन एग्जामिनेशन इज देयर, प्रिफरेबली आपका क्या, एक तो क्लास 4 का मटेरियल हो जाना चाहिए गो थ्रू। सेकेंड, आपका मॉड्यूल गो थ्रू हो जाना चाहिए, मॉड्यूल आपका बाकी रहना नहीं चाहिए। थर्ड थिंग इज दैट से अगर हो सके तो पास एग्जामिनेशन जो क्वेश्चंस है, पास एग्जामिनेशन के आपके क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, आपको रिविजनरी टेस्ट पेपर्स करना चाहिए। ये अगर आपके पास है देन इन दैट केस दैट इज व्हाट यू हैव टू डू एडिशनल। ठीक है ना। वन थिंग विच आई वांट टू टेल टू ऑल स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंटली इज दैट हमको थोड़ा बहुत सिलेक्टिव मटेरियल करना है और फिर उसका रिवीजन करते जाना है, उसका फिर रिवीजन करते जाना है। See, doing multiple materials which you are not able to revise will not give you the fruits on the last date. हम लोग अगर मल्टीपल मटेरियल्स करते हैं सिर्फ जिसको हम लोग रिवाइज नहीं कर पाएंगे ना फ्रेंड्स, तो उसका हमको लास्ट डे पे कोई भी फायदा नहीं होता है। सो मेक श्योर दैट से यू आर डूइंग
जो ऑथेंटिकेट मटेरियल है ना वो करो और उसको रिवाइज करो. इफ एट ऑल आई हैव डन मॉड्यूल प्रॉपरली फॉर 3 times, देन डू यू थिंक दैट से द 100 मार्क में एक के एग्जामिनेशन में वो लोग 60 मार्क्स का ऐसा पूछेंगे जो मॉड्यूल में कवर नहीं होगा? If somebody tells you like this, then it is absolutely they are making you foolish. इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन है. हमने क्लास वर्क, अच्छा हम लोग क्लास वर्क कहाँ से बनाते हैं? हम लोग कैप्लन मटेरियल से बनाते हैं, हम लोग सीपीए के मटेरियल से बनाते हैं, हम लोग एसीसी के मटेरियल से बनाते हैं. क्या हम लोग आईसीए के मटेरियल से ही बनाते हैं? मुश्किल से क्या होता है, थोड़ा बहुत हम लोग आगे पीछे का जो पास एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, आरटीपी है, एमटीपी है, जो हम लोगों ने गो थ्रू किए है, उससे हम लोग मटेरियल बनाते हैं. फ्रॉम वेयर डू वी मेक मटेरियल? तो अगर ये मटेरियल आप लोगों ने प्रॉपरली किया है और उसका अगर आपने बराबर से रिवीजन किया है, देन व्हाट डू यू थिंक दैट से आउट ऑफ 100 मार्क्स कितने मार्क्स का बाहर से आ सकता है? એટલે થોડુંક લોજિકલ વિચારીને આપણે પ્રિપેરેશન કરવાનું છે. એવું आप लाइब्रेरी में गए और कोई आपको बोल रहा है कि भी ये समरी नोट्स बहुत अच्छा है या तो ये सर के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, आई डोंट से दैट वो अच्छे नहीं है, बट डूइंग मल्टीपल थिंग्स इज नॉट गोइंग टू मेक अ सेंस. सी यहां से हमारा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दैट से मेरे से बेटर कोई पढ़ा ही नहीं सकता है एफएम. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दैट से भी हमारे से बेटर कोई क्लास ही नहीं है. दूसरे क्लासेस का भी रिजल्ट अच्छा ही आता है. दूसरे क्लासेस में से ऐसा नहीं होता किसी का रैंक नहीं आता है. मेरे यहाँ से भी स्टूडेंट्स फेल होते हैं, ऐसा तो नहीं मेरे यहाँ से 100% रिजल्ट आता है. आई कैन नॉट मेक यू फूल लाइक दैट. अंडरस्टैंड दैट से भी हम लोग जो प्रिपरेशन करवाते हैं वो भी अच्छा है, वो लोग प्रिपरेशन करवाते हैं वो भी अच्छा है. हावेवर ओवर हियर से आपको क्या करना है, आपको फोकस लेके पढ़ाई करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये जो है ना वो करेक्ट डायरेक्शन मिलना जरूरी है. एंड एज अ स्टूडेंट डू नॉट गेट डेविएटेड टू एनीथिंग एल्स. इतना आप अच्छी तरह से करो एंड यू जस्ट बी रिलैक्स. ये आपको अच्छी तरह से आता है ना, देन इन दैट केस यू डोंट वरी एट ऑल. ठीक है, तो देखो मैं रिपीट करता हूं. व्हाट आई वांट एवरीबॉडी ऑफ यू टू मेक श्योर इज दैट से द क्लास में जब आओ तभी आपका प्रीवियस लेक्चर का एटलीस्ट जो करंट चैप्टर चल रहा है ना उसका रिवीजन होना जरूरी है. जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपका रेशियो एनालिसिस खत्म हो गया, तो उसका रिवीजन किया है तो अच्छी बात है, पर नहीं किया तो चलेगा. आज मैं लिवरेज शुरू करूंगा. अभी लिवरेज का चैप्टर में शुरू करूंगा ना, तो आज के आज वो खत्म नहीं होने वाला है. तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने का, लिवरेज का रिवीजन करके आने का, जिसकी वजह से मैं जो बोलूंगा ना उसको आप अच्छी तरह से पकड़ सकते हो. दूसरा, होमवर्क करके आने का. होमवर्क पे कोई बार्गेनिंग नहीं करने का, वेदर इट इज माय सब्जेक्ट और एनी अदर. मैं आपको ये पूरे सीए इंटरमीडिएट का बात कर रहा हूँ, और मैं आपको पूरे सीए इंटरमीडिएट में 6 के 6 आपके एग्जामिनेशन पेपर्स के लिए आई मेक इट अकाउंटेबल टू यू. जय सर और मैं, हम दोनों जन आपको 6 के 6 पेपर्स के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल टू अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. दैट मेरे को जब भी आपका एग्जाम रखना है, मुझे जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, मुझे कभी भी आपका मटेरियल देखना है, आपका नोट्सबुक सर ने बनाया वो देखना है, देन मैं कभी भी आप लोगों से मंगवाऊंगा एंड आई विल चेक दैट. होमवर्क करना है. थर्ड, एग्जामिनेशन जो भी करंट वीक है उसका प्रिपरेशन करना है. ठीक है ना? हम लोग ऐसा एफर्ट करेंगे, आई कैन नॉट अश्योर यू दैट से एटलीस्ट 3 to 4 days बिफोर योर एग्जामिनेशन आई विल टेल यू दैट से आपका एग्जामिनेशन अभी हम लोग रखेंगे. जैसे कि हमने ऑलरेडी पिछले वीक में बात कर रखा था कि नेक्स्ट वीक में आपका रेशियो का टेस्ट होने वाला है ना. पिछले वीक में मैंने आपको बोला था दैट से ये वीक में मैं रखूं, तो आप लोगों ने नहीं सर एक वीक का ब्रेक रखे, तो हम लोग नेक्स्ट वीक में रेशियो का टेस्ट रखने वाले. ठीक है ना? और कुछ बोलो, किसी को कहना है? बराबर है ना? हाँ. चलो अभी हम लोग क्लास में से ना एक जन को अपॉइंट करते हैं कि हु विल रिमाइंड मी दैट सर अभी इसका टेस्ट आप रख सकते हो. ऐसा मेरे को कौन रिमाइंड करेगा क्लास में? कोई भी एक जन. ચલો જીલ તમે મેસેજ કરશો મને એવરી વીક, બરાબર છે કે સર જો આ એક ચેપ્ટર પતી ગયું છે, તમારે એની ટેસ્ટ રાખવી હોય તો રાખી દો તમે નેક્સ્ટ વીકમાં. હા બેટા, કોઈ બી સબ્જેક્ટ હોય તમે જોઈ લો કે ભાઈ જે ચેપ્ટર પતી ગયું હોય, અમે લોકો બી ટ્રેક તો રાખીએ જ છે, સિલેબસનું દ્રષ્ટિ અપડેટ કરાવે જ છે. હાવેવર તમે મને કહેજો કે સર એની ટેસ્ટ હવે રાખી શકાશે. ઓકે, ચલો એવરીબડી ઇઝ ઓકે.
જાય કે સ્નેહા તમને ખ્યાલ આવે ને બરોબર સ્નેહા સ્નેહા ઓકે આમ તો સ્નેહા તમે બહુ સિન્સિયર છો એટલે વાંધો નથી अच्छा दूसरा एक चीज जो भी स्टूडेंट एब्सेंट रहने वाला है इन दोनों को मैं बता दूंगा वो लोग क्या करेंगे वो ग्रुप में मैसेज करेंगे वो जो ग्रुप है ना आप लोगों का कि सर मैं आज एब्सेंट रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीजन जिसकी वजह से नॉट ओनली मी बट इवन योर फैमिली इज अवेयर कि भी आज आप एब्सेंट रहने वाले तो पर्सनल हाँ એમાં મેસેજ કરો કમ્યુનિટીમાં તો તમે મેસેજ જ ક્યાં કરી શકો એમાં તો અમે બ્લોક જ રાખ્યા છે એડમિન જ કરી શકે છે તમને લોકો આજે મટીરિયલ મળી ગયો ને નથી મળ્યું જાઓ કહો તો બહાર મેડમ हरप्रीत देखो हर एक चैप्टर के आगे ना अच्छा ये दे रखा है बरोबर है ना तो आपको चैप्टर वाइज कौन सा कॉन्सेप्ट पूछ से वो सब आपको पता चल जाएगा पर अभी ये रिलेवेंट नहीं है अपने लिए अभी अपने को पूरा का पूरा प्रिपरेशन करना है। कहीं नहीं तूने मैडम पेरेंट्स हाँ कोई बात नहीं आपने को कोई भी चैप्टर वीक लगे ना तो ऐसा सोचने का कि अगर ये चैप्टर में से 100 मीन्स पूरा का पूरा 50 मार्क का पूछ लिया तो मेरा क्या होगा तो ऐसा करके अपने आप को मोटिवेट करने का बराबर है ना समझ आया? नहीं तो टेंशन આવે તો આપણે ભણીશું ને ભાઈ વિશ્વ ખ્યાલ આવે તમારે બી હવે એવું તમે એબસન્ટ રહેવાના હો ને તો બી તમે મેસેજ કરી દેવાનું નેક્સ્ટ વીક માં 3 દિવસ હા એ તમે ગ્રુપ પર લખી કાઢજો સર કાલે કેમ અચ્છા અને પછી ઓનલાઈન તો તમે અટેન્ડ કરશો ને તમે કીધું અરે છ પંચો એના પર આયા હતા સારું બને તો અટેન્ડ કરજો હા બેટા चलो शुरू करें फ्रेंड्स नया चैप्टर लिवरेज भी अच्छा आप लोगों ने सब घर पे जाके वीडियो लेक्चर कोई देखता है या नहीं देखता है एक देखा था मैंने वो टेस्ट वाला एग्जाम था तब आपका उसमें वॉइस नहीं आ रहा था आज लेक्चर में तो એવું હતું हाँ मतलब उसमें चालू होता है बट और फिर दूसरे से बंद हो जाता है तो फिर वापस चालू करना पड़ता है ऐप बंद करके फिर वापस खोल के चालू करना वो तो समझ गई तो ये आपका इश्यू है पर આવું કઈ હોય તો પછી અમને લોકોને કહો તો ખરા તમે હું એ જ કહું છું કીધું તું તો કે હવે ત્યાંથી જવાનું તો હવે હું શું કરી શકું અમને એવું થયું હવે મને કહે છે બરોબર છે કે સર આવું ઇશ્યુ થાય છે તો સર તમે કઈ એનું સોલ્યુશન આપો ને તો હું તમને સોલ્યુશન આપીશ હા so far possible we will give solution चलो स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर कॉल्ड लिवरेज तो लिवरेज का मतलब क्या होता है लिवरेज का कैलकुलेशन कैसे होता है ऑल दोस थिंग्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ठीक है ना हाँ सबसे पहले मैं आपको उसका थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अभी आपको कुछ लिखने का नहीं है पहले क्या करने का समझने का है देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लिवरेज DOL DFL और DCL ऐसा करके 3 टाइप के लिवरेज है कितना लिवरेज है 3 DOL DFL और DCL से DOL का मतलब क्या होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज दैट इज व्हाट द फर्स्ट इज DOL का मतलब है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज सेकेंड है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज
and the third is degree of combined leverage. ऐसा करके 3 टाइप के लेवरेज है. फर्स्ट इज DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज. सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं DOL के स्टोरी से. देखो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज सर ये क्या बताता है वो मैं आपको बताता हूँ. उसके पहले इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं डिस्कस करता हूँ. एंड देन से व्हाट डज इट इंडिकेट, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. मैंने कैलकुलेशन और इसको दोनों को सेग्रीगेट कर देता हूँ. कैलकुलेशन के वैल्यू से क्या उसका कॉन्सेप्ट समझने में आपको आसानी रहेगा. टू एक्सप्लेन दैट आई एम टेकिंग अ स्मॉल एग्जांपल. लेट अस से दैट से एक बोर्ड मीटिंग चल रहा है एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और पिछले साल का कुछ रिकॉर्ड्स है जिसमें ऐसा है कि पिछले साल कंपनी का सेल्स था 4 लाख. पिछले साल कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट था 1,60,000. कंट्रीब्यूशन है 2,40,000. फिक्स कॉस्ट है पिछले साल सपोज एन अमाउंट ऑफ 1,20,000. और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज 1,20,000. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को ऑपरेटिंग इनकम भी कहा जाता है. आई रिपीट व्हाट आई सेड. पिछले साल का हमको कुछ रिकॉर्ड्स दे रखा है जिसमें सेल्स दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है. दोनों का डिफरेंस होता है कंट्रीब्यूशन. उसमें से फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट करके हमारे पास आता है ऑपरेटिंग इनकम यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. ये जो बोर्ड मीटिंग चल रहा है उसमें एक डायरेक्टर आपको ऐसा पूछ रहा है लेट से अगर नेक्स्ट ईयर हमारा सेल्स बढ़ जाता है लेट अस से बाय 20%, तो हमारा EBIT क्या होगा ऐसा आपको पूछा. तो आप क्या बोल सकते हो कि सेल्स 4 लाख का क्या हो जाएगा, 4,80,000 है ना. 20% से इंक्रीज हुआ. वेरिएबल कॉस्ट 160 का क्या हो जाएगा 192. वेरी गुड. कंट्रीब्यूशन 240 का क्या हो जाएगा 2,80,000. कितना बताया 88,000. फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा सेम ही रहेगा, वो तो 120 का 120 है. तो आपका EBIT कितना हो जाएगा 1,68,000. फिर उन्होंने पूछा दैट से व्हाट इज द इंक्रीज इन द EBIT परसेंटेज टर्म में. तो आप क्या बोलोगे दैट से 168 माइनस 120 यानी कितना होगा फ्रेंड्स 48,000 का इंक्रीज ओवर व्हाट 1,20,000 इनटू क्या करेंगे 100 यानी कितना होगा 40%. क्लियर है. फिर दूसरे डायरेक्टर ने आपको ऐसा पूछा कि अगर हमारा सेल्स गिर गया लेट अस से बाय 10%, सेल्स गिर गया कितने से 10% से, तो ये 4 लाख का कितना हो जाएगा 360. वेरिएबल कॉस्ट 160 का क्या हो जाएगा 1,44,000. कंट्रीब्यूशन 240 का 2,16,000. फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा वो तो सेम ही रहेगा. फिक्स कॉस्ट का नाम ही ऐसा है फिक्स कॉस्ट. चलो EBIT कितना हो जाएगा 96,000. नहीं देखो 120 का कितना हो गया 96 को कितने से रिड्यूस हो रहा है, कितने से रिड्यूस हो रहा है 24,000 से रिड्यूस हो रहा है ओवर 1,20,000 यानी कितना परसेंटेज रिड्यूस हुआ 20%. हाँ या ना. चलो तो ऐसा करके आपको 2 डायरेक्टर्स ने पूछा लेट से सेल्स बढ़ेगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा. फिर और 1-2 ने ऐसा ही कुछ आपको क्वेश्चन पूछा कि सेल्स में चेंज होगा तो EBIT में क्या चेंज होगा, सेल्स में चेंज होगा तो EBIT में क्या चेंज. तो ये सब सुनने के बाद आपने क्या बोला कि देखो मैं आपको ऐसा बताता हूँ दैट वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. उसका मतलब क्या है वो हम लोग थोड़ी देर में समझते हैं. इट कैन बी कैलकुलेटेड एज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे एग्जांपल में 2,40,000. EBIT कितना है हमारे एग्जांपल में 1,20,000.
सो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, आंसर कितना है 2. सो वी अंडरस्टैंड एट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है 2. ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बताता है? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज ईबीआईटी फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बताता है? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स. यानी सपोज कि हमारा सेल्स 20% से इंक्रीज हो रहा है, सो 20 इंटू 2 कितना होगा 40. देखो ये 40% से इंक्रीज, ये 10% से रिड्यूस हो रहा है, तो 10 इंटू 2 कितना होगा 20%. देखो ये 20% से रिड्यूस हो रहा है. What I want to tell you, dear students, is that degree of operating leverage is measuring what is the percentage change in EBIT for every 1% change in sales. सर ऐसा फॉर्मूला कहाँ आया, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर कि फॉर्मूला कैसे आया. लिवरेज का कॉन्सेप्ट क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ. मैं पहले अभी किसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, कैलकुलेशन के ऊपर. थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके ऊपर से फिर अपने को आइडिया आ जाएगा. जैसे कि सपोज कि एक कंपनी का कंट्रीब्यूशन है फॉर एग्जांपल 5 लाख, कंपनी का फिक्स कॉस्ट है सपोज कि 4 लाख, ईबीआईटी है 1 लाख. तो उस केस में हमारा DOL क्या होगा 5. सर 5 कैसे है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ऐसा करके हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज होगा 5. सर ये DOL 5 क्या बताता है, DOL 5 ये बताता है कि फॉर एवरी 1% चेंज इन द सेल्स ईबीआईटी विल चेंज एट द रेट ऑफ 5%. यानी सेल्स अगर हमारा बढ़ेगा 1% से तो हमारा ईबीआईटी बढ़ेगा 5% से, और अगर अपना सेल्स गिरेगा 1% से तो हमारा ईबीआईटी क्या होगा 5% से. यस नो, यस नो. अच्छा, सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज measuring what is the percentage change in EBIT for every 1% change in sales. ऐसा इसका मतलब. ओके सर, ये फॉर्मूला आपने बताया वो फॉर्मूला कहाँ से आया, मैं आपको वो समझा देता हूँ. अच्छा, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन होता है फॉर्मूला का. आप लोगों को पढ़ना है डेरिवेशन, एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है डेरिवेशन, पर वो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है. आप बोलो तो मैं समझाऊं आपको. यस नो, समझाओ. चलो ठीक है. कई बार क्या होता है कि डेरिवेशन थोड़ा क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है. तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं, वो सब मैं मेहनत करके लिखता हूँ उसके बाद कि सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, फिर वो तो नहीं पूछा जाता है. तो फिर क्या बोलते हैं कि सर ये पढ़ाने का क्या जरूरत था. तो एकदम આપણે આટલું હોશી ભણાવતા હોઈએ એકદમ દિલથી અને પછી આવું આપણે સાંભળીએ એટલે કેવું લાગે આપણને. तो मैं तो फिर इसलिए भी पूछ के पढ़ाता हूँ. चलो तो मैं समझा देता हूँ आपको कि ये डेरिवेशन कैसे है फॉर्मूला का. अच्छा, एक हमारा टर्म है जिसका नाम है वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो. वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. बराबर है ना, इज दैट ओके ना. फिर जैसे कि हमारे एग्जांपल में वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो कितना है, देखो ना. वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो कितना है 40%. बराबर है ना. 1,60,000 का हमारा वेरिएबल कॉस्ट है और 4 लाख का हमारा सेल्स है, यानी कितना है 40%. ओके ना, देखो अभी गौर से सुनो. कैन वी से समथिंग लाइक दिस दैट चेंज इन EBIT is equal to change in contribution. बराबर लिखा मैंने, क्या लिखा, चेंज इन EBIT इज इक्वल टू चेंज इन कंट्रीब्यूशन. क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है. सो वी अंडरस्टैंड दैट से जितना भी हमारा कंट्रीब्यूशन में चेंज होगा, देखो जहां से कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज हो रहा है, कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज हो रहा है 48,000. EBIT में कितना चेंज हो रहा है 48. यस नो. अच्छा देखो, यहां से यहां देखो, 2,40,000 से 2,16,000 कितना चेंज हो रहा है 24,000. तो देखो ये कितना चेंज हो रहा है 24. यस नो. अच्छा, सो वी अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस कि
change in EBIT is equal to change in contribution. So can we say that the change in EBIT is equal to change in sales minus change in variable cost? बराबर है ना सर? कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज है? जैसे कि यहाँ पे कितना चेंज है? 48,000। तो देखो ये कितना है? 80,000 माइनस क्या करेंगे? 32,000। सो 80 माइनस 32 कितना आ जाएगा? 48,000। सो चेंज इन सेल्स माइनस चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, हाँ या ना? चेंज इन सेल्स माइनस क्या करेंगे? चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। ओके, एकदम गौर से सुनो भी। नाउ चेंज इन EBIT is equal to change in sales minus change in sales into variable cost to sales ratio। देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है। कितना है? 40%। कितना है? 40%। तो देखो 80,000 उसका 40% कितना आता है? 32,000। तो देखो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? एग्जैक्टली 32,000, हाँ या ना? मैं वापस बोलता हूँ, देखो चेंज इन सेल्स, देखो ये 4 लाख से हो गया 3,60,000, यानी कितने से रिड्यूस हुआ? 40,000। 40,000 का 40% कितना आता है? 40,000 का 40% कितना आता है? 16,000। तो देखो ये जो 2,40,000 है, सॉरी ये 1,60,000 है, उसमें से 16,000 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,40,000, हाँ या ना? ओके। अच्छा, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा मैथ्स बहुत अच्छा था इसलिए हम लोगों ने कॉमर्स लिया, बराबर है ना? चेंज इन सेल्स इनटू क्या करेंगे? 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, है ना? 1 हमने क्या लिया? कॉमन लिया, है ना? किसका? चेंज इन सेल्स का। यस नो? चेंज इन EBIT इज इक्वल टू चेंज इन सेल्स इनटू, देखो यहां पे मैं 1 लिख रहा हूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इट इज 1/1? तो हम लोग क्या ले सकते हैं? 1 और सेल्स का LCM ले सकते हैं। ये बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है। LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, पता है ना? अच्छा अच्छा, कोई जो मेरे जैसा है जिसको नहीं पता है उसके लिए ये। चलो ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिया? सेल्स कॉमन ले लिया, तो न्यूमरेटर में क्या हो गया? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, चेंज इन EBIT इज इक्वल टू चेंज इन सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन, है ना? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को मतलब क्या? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। सर आपने यहाँ नहीं और यहाँ लिखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो तो कहीं पे भी लिख सकते हैं। हाँ, सेम ही आंसर आएगा। ना फॉर द पर्पस ऑफ दैट इज से डिराइविंग अ फॉर्मूला, मैं दोनों तरफ, दोनों साइड क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स? मैं दोनों साइड EBIT से डिवाइड कर रहा हूँ। सर क्यों ऐसा? बिकॉज आई वॉन्ट टू डिराइव अ फॉर्मूला। फॉर्मूला डेरिवेशन का रूल क्या है? आप मल्टीप्लाई करो तो दोनों साइड करो, डिवाइड करो तो दोनों साइड करो, हाँ या ना? सो दिस इज द रीजन आई एम डिवाइडिंग EBIT ऑन बोथ द साइड्स। अच्छा, नाउ चेंज इन EBIT अपॉन EBIT, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ परसेंटेज चेंज इन EBIT, हाँ या ना? तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ परसेंटेज चेंज इन EBIT। चेंज इन सेल्स अपॉन सेल्स, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ परसेंटेज चेंज इन सेल्स? मैंने क्या किया? ये जो चेंज इन सेल्स अपॉन सेल्स है परसेंटेज चेंज इन सेल्स, उसको मैंने ऑपोजिट साइड डाल दिया, तो वो क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन सेल्स हो गया। इज इक्वल टू क्या करेंगे? C अपॉन EBIT। तो देखो C अपॉन EBIT को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको हम लोग बोलते हैं डॉल, DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। पता चला? अभी तक मैं कैलकुलेशन के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के ऊपर ही फोकस नहीं कर रहा हूँ। पहले मेरे को कैलकुलेशन थोड़ा करवाने दो,
उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्चुअली पॉइंट करवाता हूँ। इज दैट ओके ऑल ऑफ यू? जाऊँ आगे? चलो, डेरिवेशन लिखना है आपको, नहीं लिखना है? नहीं। लिख सकते हैं, लिखना हो तो, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते। चलो, राइट ऑन हेडिंग लेवरेज। सीए फाइनल में एक फॉर्मूला आता है ना फ्रेंड्स, उसका डेरिवेशन अप्रोक्सीमेटली ऐसा है ना, 5 पेज पे चलता है, 5 पेज पे। एग्जाम में तो क्या डेरिवेशन क्या देना एग्जाम, उसमें भी मैं ऐसा ही करता हूँ। डेरिवेशन पढ़ना है स्टूडेंट्स, कुछ हाँ कुछ ना, तो फिर मैं बोलता हूँ कि जो लेक्चर होगा ना, તમને મળ્યું નહીં મટીરિયલ હજુ? અરે રે પૃથ્વી, તમારી સાથે કેમ આવું થાય છે યાર? હા સાચી વાત છે. હા, તમારું લોકો જ ચેક કરે છે યાર, મને બહુ દુઃખ થાય છે. હવે તો મેં હા બી પાડી દીધી, ડિપોઝિટ કરના તો તે તો તો બી આવે તો questions ના. अच्छा फाइनेंसिंग सीजन અને પછી નેક્સ્ટ વર્ઝન हम राह देखते रहते તમને એક બી ક્વેશ્ચન માં એવું ના થાય કે ભાઈ મારી પાસે મટીરિયલ નથી. સર હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મારું હોમવર્ક કમ્પ્લીટ હશે. એટલે એકચ્યુઅલી ઘણી વાર છે ને એવું મને લાગે કે કેટલાક સ્ટુડન્ટ્સ હોમવર્કની જરૂર જ નથી એમ, એ લોકો એટલા હોશિયાર છે ને કે લોકોને જરૂર જ નથી. સર મેં મોડ્યુલ્સના બધા કરી લીધા. ના ના, હું ખાલી જનરલ વાત કરું છું તમને, હું તમને નથી કહેતો કે. हाँ साची बात है, एकदम साची बात है. यस, आप कुछ बता रहे थे? कुछ नहीं. चलो, that on first point. એ હજુ કરાવડાવવાનું છે, થોડું કેલ્ક્યુલેશન કરાવો ને પછી હું કરાવીશ તો તમને વધારે આઈડિયા આવશે. In this chapter, we are going to learn calculation of A, DOL, ब्रैकेट में लिखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज. B, DFL, degree of financial leverage. C, degree of combined leverage. Second point, from basic information, comma,
DOL is found by using following formula. C stands for contribution. EBIT stands for earning before interest and taxes. उसको ऑपरेटिंग इनकम नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग इनकम. And operating expense EBT. नहीं बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस. थर्ड पॉइंट, DOL measures percentage change in EBIT for every 1% change in sales. उसी में लिखो आगे, सपोज DOL is 5, comma, it means for every 1% change in sales, EBIT will change at the rate 5%. आज लेक्चर 3 o'clock से तो 2:45 हुई. सो कोई बात नहीं, मैं ध्यान ही नहीं रहा आपको. नेक्स्ट टाइम करते हैं, आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं. क्या हुआ? नहीं पापा, चित्र आगे लेक्चर है ना, चल रहा हूँ. देवेंद्र सर लेक्चर કેટલા વાગે સુધી કેટલા વાગે શરૂ થશે? ना ना, शुरू કેટલા વાગે? 3 ऑलरेडी. अभी यार मारा मारी चल रहा है ब्रेक का, और अभी